remarks, and I'm glad that you set the tone for today's discussion. We are at a time when we suffer as a nation from very low self-esteem, as if we are a nation of rotten people, corrupt to the core and inefficient, lazy, do nothing. I think this is a very sad state of affairs, because there is so much we can be proud of in the country, not just in today's context, even historically. And surely, as Mr. Doval said, that one of the things which highlight India as a very great nation, as a model to be emulated, is our democracy, however chaotic it may be, the real, genuine, vibrant democracy, and it's really the efficient electoral system, the election management. The topic which was given to me was people's participation, and I'm glad that I chose this topic because this is the topic of my personal interest also. Mr. Doval made a comment in passing that when he mentioned that I did my PhD in role of communication and social marketing, and he really could not really understand what social marketing is, and this is a question which I've been asked many times. When I heard the term for the first time, I was interested in communication, all right. When I heard it for the first time in the 80s, I was Director of Child Development of India, and we had some USAID assisted project where we had a consultant for communication, health and nutrition education under the ICDS program. So, and that is the first time I met the author of the concept of social marketing, Mr. Richard Mack, who wrote the first book ever on social marketing in 1984. In brief, social marketing is using commercial marketing principles for totally non-commercial purposes. The cigarette maker sells cigarettes, we have to sell non-smoking. So the liquor maker sells liquor, we have to sell prohibition, not drinking. And our job is more difficult. Because if somebody is smoking, it looks like a hero, instant appeal, becomes a fashion statement. We have to say, no, it will take you to cancer and then you will die, and every smoke that you take, you are losing 11 minutes. It's so intangible, it doesn't really create an impact on people's mind. So we use social marketing to sell. You can sell through marketing anything, any socially useful idea or product is social marketing. If you can sell soap, you should be able to sell an idea. I like the concept. It sounded like an oxymoron when I first heard it. Social and marketing, they're opposite, but actually it's a very brilliant technique. But incidentally, Mr. Doval, they say the first PhD in social marketing in the world, because it was not an academic subject. It was not an academic subject, it was just a technique of communication which was used by USAID in its, the social development program, family planning, nutrition, worldwide, including India. And I thought this is a brilliant topic and I chose it. I'm glad I did. And I've used it ever since in every job which I did, including in election commission for voter participation. What has led to virtually the participation revolution is nothing but a product of the social marketing technique which I use. So I hope now, the democracy itself includes the word participation. It's a Greek word, demos is people, and kratos is power, people's power. And participating democracy tries to create opportunities for all to contribute to decision making. Madam, आप इधर होना चाहिए, because it will be blocking. उधर बता दीजिए. And anyone who is not able to see the screen will be better off on the other side, because that is the principle of communication. If I am speaking, it should reach you. Otherwise, it's no good. When India chose democracy in 1950, the Western world was aghast. They said these guys have gone mad. They will run democracy with 84% illiteracy. When the country was divided into 565 princely states and a principality, we had caste division, social division of all kinds. There was no entity called India. And they said they will run democracy.
But we proved the prophets of doom wrong in the very first election. The fundamental right to equality, which was given by the Constitution, laid the foundation for people's participation. Everybody was equal. And the fact that equal voting rights were given to men and women from day one is something we should be proud of. You know how many years it took America to give equal voting rights to women? Any guess? More than 200. 144 years. The mother of modern democracies, UK, took 100 years to give equal voting rights to women. And every now and then in Anna movement, we say, you know, we must do right to recall from Switzerland. Switzerland gave equal voting rights to women in 1984. Now France, Italy, all these, you know, we seem to idealize those countries, were way behind India. And the fact that it worked from the beginning is something which is really something to be proud of. Now, India is probably the most diverse country in the world. You have all kinds of geography, all kinds of topography, all the most religions of the world you will find, 22 official languages, 600 very developed languages, 6,000 recognizable dialects, and many 1,000 more. India is really unique. India has the world in itself. You have snow around the year, and you have desert around the year, and you have all kinds of climate, and that is what India is. Now, in such a diverse country, ensuring that everybody participates equally becomes difficult, becomes important, becomes crucial. None should be marginalized. You cannot say that you are living in remote areas or in the deep forest or on an island far away, so democracy will not reach you. That is not the option available to us at all. That's why the Constitution provided safeguards for all kinds of minorities. Another submission I would like to make to you, that India is a land of minorities. Everybody is a minority in some context or the other. The linguistic minorities, regional minorities, the religious minority, even the Hindus are minority in Kashmir, in the northeast. So it's a land of minority. Then, you know, when you are a minority, you have a kind of a disadvantage, and that needs to be addressed so that nobody is marginalized, nobody is left out of the concept of equality. Then, interestingly, when the Constitution framers must say that the wisest people we had, they gave us a brilliant Constitution, and when they were trying to deal with the diversity, they found that election has to ensure the complete equality, and they suspected that there will be a time when there will be parochialism. As we hear, for instance, Mumbai for Mumbaikars, or the Chennai for Tamilians, and so, a place for Bengal for Bengalis. You know, they anticipated that. That's why, you know, they did what can be interpreted as a constitutional anomaly. Normally, the parliament election by a federal commission is all right, but state assembly elections to be conducted by a federal commission was the decision they took consciously. They said, unless there is a federal commission, no outsider of a state will ever be allowed to enroll himself as a voter. Now, and it has proved right, because whether those tendencies were pronounced that time or not, but they were far-sighted people. Then our laws under the Constitution have provided protection to pluralistic society. That pluralistic society is what makes India unique. We are a commonwealth, we are a mini globe. Then you cannot make appeal while campaigning on grounds of religion, caste, creed, community, or language. On those grounds, they are not allowed. Then you can't promote a feeling of hatred, ill will, or enmity between different classes of Indian citizens. You cannot use religious institutions for campaigning, and you cannot interfere with the voting rights of scheduled castes and scheduled tribes. It carries imprisonment, and model code of conduct and the range of instructions of the election commission ensure all this in addition to the laws.
Then corruption, bribery, fraud, manipulation, undue influence by using official machinery, threat, inducement. Obviously, the more suppressed you are, the more chances of your intimidation. I was just talking to General Chaudhary. One very common practice in your region, sir, used to be that the scheduled caste voters will not be allowed to come out of their homes on the election day. Now, the poll will be very peaceful because others have not been, they have been stopped in their home. If you come out of your home, they'll break your legs. Now, a kind of a curfew is imposed. Now, those guys don't come out, and the dominant community has every opportunity to conduct what is peaceful poll. A peaceful poll is not necessarily a free and fair poll. Then, to the check fraud of all kinds and intimidation, Election Commission has to ensure and has to remove all obstacles against intimidation and violence. We have started doing for the last 5-6 years what we call vulnerability mapping of a polling booth. Who are the people who are likely to disturb the peaceful poll and free and fair poll? We must find them out and take legal action against them under the CRPC, preventive action for good behavior. We identified in the last general election about 87,000 villages which were vulnerable, and there 373,000 were identified as potential troublemakers. ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये कर सकते हैं, वो उसको लूटेंगे, ये उसको मारेंगे. पहले से उनको ढूंढ के रखा हमने. फिर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया. Then we unleash a whole team of videographers. 75,000 हमने वीडियो कैमरास घूमेंगे, कैप्चर करते फिरोगे, कोई कौन बुली कैंडिडेट लोगों को बुली कर रहा है, उसके कैप्चर करो. We have been asking the government to debar criminals from contesting election. वो तो नहीं हुआ, लेकिन till then हम कुछ तो करें. तो 24 घंटे का हम उनके ऊपर वीडियो विजिल लगा देते हैं कि हर चीज उनकी टेप हो रही होगी. अब वो गुंडागर्दी करके निकला, लेकिन पीछे कैमरा चल रहा है, तो क्या करेगा? मोड़ मोड़ के देखता रहता है. देखा कि ये तो जा ही नहीं रहा, पीछे नहीं छोड़ रहा, तो फिर then he gives up. सारे उसकी bad intention, because once it gets captured, he will be in deep trouble. Then vulnerability mapping. Earlier we used to have a very simple technique of classifying our polling station as general, normal, and sensitive and hypersensitive. Now, sensitive was where there was some booth capturing, some violence in the past, उसको हमने vulnerable कर दिया. Sensitive है. जहाँ पे murder भी हो गए थे, जो 10-20 murder होना बड़ा common बात थी, तो hypersensitive. But we found that this system was erratic. एक दफा 20 साल पहले कोई इंसिडेंट हो गया, हमने उसको hypersensitive डिक्लेयर कर दिया. वो दिस में भी one-off incident. अब इसकी implication क्या है कि अब 20 साल पहले हमने उसको कर दिया. नॉर्मली इट इज इनोसेंट विलेज, वेरी पीसफुल विलेज. अब जब पैरामिलिट्री फोर्स हम भेजेंगे तो सारी वहाँ भेज देंगे, वो तो वेस्ट हो जाएगी. वहाँ तो पीसफुल है, कभी ट्रबल थी, अब तो ठीक है. तो इसे एक दफा क्लासिफाई करके हम उसको डिक्लासिफाई नहीं करते थे. पॉलिटिकल पार्टीज की क्या टेंडेंसी थी नेताओं की, वो जब हम उनसे बातें करते हैं, भाई बताओ अपनी विश लिस्ट बताओ, अपने फियर्स क्या हैं, आपको किससे डर है, क्या क्या हमें करना चाहिए, तो वो हमेशा कहेंगे कि फला 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 गांव जो है ना बड़े सेंसिटिव है. क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि मेरे राइवल कैंडिडेट के सारी पुलिस वहां भेज दो, सारी पुलिस वहां भेज दो, मुझको छोड़ दो, तो मैं अपने जो चाहूँ करूंगा. ये we saw through this, we changed it. We came out with the 11 criteria जिसपे हम कल complaint और no complaint हमारे अपने self checks हैं. Just to give you one or two example, कि हम ये भी देखते हैं कि इसकी polling history polling booth की क्या है. अगर normal turnout was 60% और एक particular booth का था 75 या 80%, so it may be perfect, genuine, but we flag it as a potential गड़बड़ कि booth capturing हो गई होगी. Conversely, average was 60, लेकिन एक बूथ में सिर्फ 20% थे. So what will be the implication? Intimidation हुई होगी या किसी को वोट देने आने नहीं दिया गया होगा. इस तरह से तो all basis पे भी हम flag कर देते. They may be innocent, then we will take no action, but they are under our watch. We scrutinize the record. बल्कि हमारा एक formula बना रखा हमने कि if any booth shows more than 15% than the average, उसको हम इस पे
60 के एवरेज 75 वाले के ऊपर को उसने फ्लैग कर दिया potential vulnerable. We will scrutinize your records, your videos, your camera, CCTV camera more carefully. Yeah, a very innocent village लगे वहाँ का कैंडिडेट MLA के लिए कैंडिडेट हो गया तो गांव सडनली सेंसिटिव हो गया उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रॉब्लम हम लिस्ट कर लेते हैं. देन हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होते हैं और इंक्रीजिंगली ये डिमांड होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की कि भाई अपनी पैरामिलिट्री फोर्स लेकर आइए क्योंकि लोकल पुलिस पे उनको भरोसा नहीं है. ये अपनी जगह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अपनी ही पुलिस पे भरोसा ना हो और सेंट्रल पुलिस को हर बार लेके जाए. आफ्टर ऑल वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कई बड़े सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉयड होती हैं, बॉर्डर्स पे होती हैं, माओइस्ट एरियाज में. हम उनको फिर लड़ झगड़ के होम मिनिस्ट्री की आर्म टेस्टिंग करके उनको लेके आते हैं. 700 800 कंपनीज हम लेते हैं और उनको डिप्लॉय करते हैं. तो लेकिन ये भी उसमें कैच है कि what we call paramilitary is not always paramilitary. It can also be Punjab armed police going to Tamil Nadu. But when Punjab armed police goes to Tamil Nadu, it behaves like paramilitary because they can't understand Tamil and nobody can give them instructions in Tamil. तो ऑर्डर पॉलिटिशियन जो कहेगा वो देख नहीं सकते उनको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं. So therefore outside the state they are outside the influence because basically even competent people are not able to deliver because of the political pressure. आप बाहर चले जाइए आप स्ट्रेंजर है वहाँ पे आप अच्छा ठीक बिहेव करेंगे. तो ये इस किस्म की हम बैलेंसिंग करते रहते हैं. Then people participating बात करें कि election has to be very inclusive. In fact, since I was a communication guy at OSA, very first week I suggested to the election commission that we should have a voter education division. I was almost shoot off. अपने टाइम में करना. तो वो भी तो मेरा टाइम था. I was the election commissioner, one of the three. So I waited for my time 4 years. Otherwise 4 years पहले हम करते तो बहुत कुछ कर चुके होते. चलिए वो मेरे पास में वो ग्लोरी भी फिर मुझे को मिली. लेकिन काम तो हम करके दिखा. Within the commission there was resistance also कि हमारा काम तो इलेक्शन कंडक्ट करना है, हमारा काम एजुकेट करना नहीं है. Now अगर वोट देने ना आए, people participation ना हो तो वो क्या इलेक्शन है? टर्न आउट अगर 5-10% है तो क्या लेजिटिमेसी होगी उस इलेक्शन की. तो लेजिटिमेसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट के कितने वोट लेके आया, कैसे आया, कितने लोगों ने वोट दिया, ये डेमोक्रेसी का इंटरनल पार्ट है. Therefore, I insisted, and we fortunately we had a way, and we set up a division, and we have not looked back. We set up a voter education division. We got a man from Information and Broadcasting Ministry as for DG. We everywhere where we were going to the polls. First was Bihar in 2010. Some of you who are from Bihar, yeah. So now Bihar. So you will remember. Bihar gave us not only the most peaceful election in history in 2010, but also the highest turnout in history. Also, you will remember the Sharda Sinai of folk singer whom we enrolled as our brand ambassador because of her women outvoted men. More women came and voted than men. Jabki women ka number, absolute number is less than men, which is another sad story. 1000 मर्दों के मुकाबले में कितनी औरतें हैं इंडिया में? व्हाट इज द एवरेज? 940. 940 ये तो अभी बढ़ गई है, वरना 927 922 इस रेंज में चलती थी. 940 फिर भी although they are less in number but they came out in larger number, which was a great success of our motivational campaign, voter education campaign. They responded. Then to make sure that women participate, we take some special steps. There are separate queues for women at polling station. In some places, separate polling station for women. Women officers are deployed ताकि जहाँ पर्दा नशीन औरतें हैं, मुस्लिम ही नहीं है, राजपूत औरतें भी पर्दा करती हैं अगर तो उनको उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए औरतों को हम पोस्ट करते हैं. वुमेन पुलिस फोर्स यूज करते हैं. और यूपी में हमने एक बड़ी सिंपल, बिकॉज वी आर ऑलवेज लर्निंग एंड वी आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू सजेशन. एक बैठे बैठे आइडिया आया कि हम जब औरतों को इन्वॉल्व कर रहे थे कि क्यू में जो औरतें हैं, अगर हमने कहा कि एक मर्द अगर बूथ में जा रहा है तो उसके आगे 2 औरतों को जाने दो. विद द रिजल्ट के औरतों की क्यू इतनी फास्ट मूव कर रही थी कि वो
जल्दी जल्दी जाती जब वो आप बेचारे औरतें 3-3 शिफ्ट में तो वो काम करती हैं, फर्स्ट टू गेट अप एंड लास्ट टू स्लीप। अब वो वोट देने से पहले पूरा घर वर भी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को तैयार करना। फिर वो आई और फिर जब वो वापस जल्दी गई, then they came, went and told their neighbors कि बहन मैं तो गई थी, मैं एक आधे घंटे में आ गई, तुम भी जाओ। किसे हुआ with the result यूपी में 45% increase in women's turnout. Overall was 30%, women's turnout increased by 45%. So that was amazing. Then to make participation a reality, we make sure that every disabled person is facilitated. We have a ramp in every polling station. 8.5 लाख पोलिंग स्टेशन थे, स्कूल की बिल्डिंग में होते हैं। नॉर्मली आपको मालूम है स्कूल में कोई रैंप तो होती नहीं, लेकिन इलेक्शन के लिए हम वहाँ पर रैंप लगाते हैं ताकि व्हील चेयर जा सके। हमारी हर वोटिंग मशीन पे 12 लाख मशीनें यूज की। ब्रेल स्ट्रिप है फॉर ब्लाइंड पीपल हु आर ब्रेल लिटरेट। फॉर ओल्ड एंड इन्फर्म वी अलाउ ए कंपेनियन। Then आप मालूम है कि the kind of symbol that we have on the ballot paper, ये हर कंट्री में नहीं होता, सिर्फ नाम होता है कैंडिडेट का, ये उसको फोटो। हमारे यहाँ हमने सिंबल शुरू की ताकि इलिटरेट, जैसे मैंने आपको याद दिला 84% इलिटरेट थे पहले इलेक्शन में, तो सिंबल शुरू की ताकि कोई वो सिंबल के जरिए वोट कर सके। फैक्ट ये है कि मैं भी जब जाता हूँ मैं भी सिंबल से ही देखता हूँ, क्योंकि 40 नाम कौन पड़ेगा, तो सिंबल आसानी से दिख जाती है। इसी तरह हमारे जो बैलेट पेपर्स हैं मल्टीलिंगुअल हैं, इलेक्टोरल रोल बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल होते हैं। और टू मेक इट रियली इंक्लूसिव, हमने 2 साल पहले हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आई ट्रांसजेंडर्स की, हीजड़ों की। ये हम जब एनरोल करते हैं, हमको एनरोल नहीं करते, साड़ी पहना हुआ है, आवाज मर्द की, तो वो लिखने वाला भी होता है कि भाई आप मेल हो कि फीमेल, क्या लिखे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बहुत कॉमन सेंस का एक डिसीजन 30 सेकंड में लिया कि हमने एक तीसरा जेंडर ही क्रिएट कर दिया, अदर, मेल फीमेल अदर, कि भाई ये इनको अदर जेंडर लिख लो। 1 मिलियन पीपल बेनिफिटेड, दिस सेलिब्रेटेड। बाद में सेंसस वालों ने कहा कि यार ये तो बड़ा सिंपल मामला था, हम भी कर सकते। अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, आई एम 100% श्योर दैट सुप्रीम कोर्ट आल्सो विल बी कंपेल्ड to follow the same line. What does it cost? अब बाबू से आप पूछते रहोगे कि हम इसको किस तरह ले करें, वो घुमाता रहेगा, आपको करने ही नहीं देगा। So it's common sense and do it. Then to make sure that nobody is disadvantaged, हर एक को कोई बाधा न हो, कोई रुकावट न हो। जब हम इलेक्शन की शेड्यूल करते हैं, वो उसमें भी बड़ी होमवर्क होता है। लोग समझते हैं कि बात करते हैं किस तरह शेड्यूल कर दिया, क्या कर दिया, ये नहीं, ये क्यों नहीं कर दिया, संडे क्यों नहीं करते, मंडे को क्यों नहीं करते। उसके पीछे इतना होमवर्क होता है। तो हॉलीडेज की जो हमारे रिकॉर्ड आता है पूरे 35 स्टेट से, इतना मोटा, उसको तो फाइन हो जाता है। हमें देखना होता है कोई फेस्टिवल तो नहीं, कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, कोई लोकल फेस्टिवल होता है, टिपिकल लोकल फेस्टिवल, कोई नेशनल फेस्टिवल है, कोई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। सोइंग के जमाने में किसान बिल्कुल नहीं आएगा, हार्वेस्टिंग के जमाने तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। सो देयरफॉर उस जमाने उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। और इम्तिहान जब बच्चों के एग्जाम तो मार्च के महीने में यू विल फाइंड नो इलेक्शन एवर वगैरह वगैरह। तो इट्स ओनली टू इंश्योर दैट नोबडी फील डिसएडवांटेज। पिछले महीने इसी महीने इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, आपको मालूम है 8 तारीख को रिजल्ट आए 4 स्टेट्स के, और मिजोरम के आए थे 9 तारीख को। वाई? क्योंकि मिजोरम ने प्रोटेस्ट किया कि साहब संडे है, हमारे सारे एम्प्लॉय सब लोग चर्च जाते हैं, तो संडे को नहीं करके हमने कहा कोई बात नहीं, संडे को नहीं करके मंडे को कर देंगे आप। वोट लेकिन इसी को प्रेस्टीज इशू बना लें, नहीं जी हम तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, ये इसी तरह से चक्कर नहीं पड़ रहा। बात ये बेसिकली वी वांट एवरीबॉडी टू बी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी। देन मॉडल कोड इज अ वंडरफुल इम्प्लीमेंट, ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, और ये इसका क्रेडिट हमें नेताओं को ही देना चाहिए कि ये मॉडल कोड इज नॉट अ लॉ, इट्स अ क्रिएशन ऑफ इट्स अ वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्फ फॉर देमसेल्फ, कि हम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, हम हेट स्पीच नहीं करेंगे, बहुत गलम गलौज नहीं करेंगे, कैंपेन को साफ सुथरा रखेंगे और डिग्निफाइड रखेंगे। इसका इतना अच्छा असर होता है कि दुनिया देखती है कि ये आप कैसे कर लेते हैं।
the compliance to the model code is more than to compliance to any law of the land. मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जान निकलती है अगर जरा सा भी वायलेशन को ये डर हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा. लोग जो समझते नहीं है लोग वो हमको भी गाली देते हैं क्या इलेक्शन कमीशन टूथलेस है कि उसने बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया तो उन्होंने कह दिया आगे से न करना, हम आपको रेप्रिमांड करते हैं, सेंश्योर करते हैं. उसकी वैल्यू को नहीं समझते. एक बड़े लीडर को रेप्रिमांड हो जाए, सेंश्योर हो जाए, उसकी तो नींद उड़ जाती है और लोग उसको भूलते नहीं है. आपको याद होगा सलमान खुर्शीद को हमने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड उनको नोटिस दिया था. कई लोगों ने कहा कि तो नूरा कुश्ती फिक्स में था, उनको तो आपने सेंश्योर ही कर दिया. सेंश्योर से उनकी क्या हालत हुई थी, 36 घंटे के अंदर लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड कम्स डाउन ऑन हिज नीज, आई बाउ टू द विड्रॉल इलेक्शन, आई विल नेवर डू इट अगेन. द फैक्ट कि आज तक उसका सवाल जवाब होता है. अगर मैंने अभी जिक्र नहीं किया तो मैं भी क्वेश्चन आंसर में आप में से कोई जरूर पूछता. तो फैक्ट लोग उसको फॉरगिव नहीं करते कि मॉडल कोड को वायलेट किया था. तो इसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी है. अब मॉरल अथॉरिटी को हमें अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए. बहुत बड़ी चीज है कि अगर किसी मिनिस्टर, किसी पॉलिटिशियन को नोटिस दिया जाए तो उससे उसकी पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ इतनी हो जाती है कि उसके कई परसेंट तो वोट छिन जाते हैं. इसमें भी इंश्योर कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट कैसे कंडक्ट करेंगे, उनकी पब्लिक मीटिंग कैसे होंगी, प्रोसेशन कैसे होंगे. आपको याद होगा 1,000 गाड़ियों का प्रोसेशन निकला करता था. इट यूज्ड टू बी ए वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ के किसके पास किसकी. अरे फलां का प्रोसेशन बहुत लंबा था, 6 घंटे तक चांदनी चौक से निकला. 6 घंटे तक पब्लिक न्यूसेंस की उस बेसिस पे उसकी सक्सेस गिनी जाती थी. इलेक्शन कमीशन के नाम थे कि नो 1000 व्हीकल, ओनली 3 व्हीकल्स. मे बी वी वेंट ऑन द अदर साइड, नाउ इट इज 10 व्हीकल्स. और 10 व्हीकल उसके बाद आप दूसरा जुलूस निकालिए, गैप रखिए ताकि ट्रैफिक लोगों को डिस्टर्ब न करे. देन गवर्नमेंट इन पावर को तो खास करते हैं, उनके पे तो वी कम डाउन हेवीली, व्हिच इज व्हाई आई हैव एक्सपीरियंस कि गवर्नमेंट ऑफ द डे हेट्स अस, ऑपोजिशन पार्टीज लव अस, बिकॉज वी मेक श्योर दैट द लेवल प्लेइंग फील्ड इज इंश्योर्ड. वही रूलिंग पार्टी जो हमको नफरत करती है, जब वो खुद ऑपोजिशन में आ जाती है तो वो भी हमसे प्यार करने लगती है. वो आगे कहते हैं जनाब जितनी शक्ति आपने जब की थी हमारे खिलाफ, आप हमारे फेवर में भी करो. करते हैं. इट हैपन. फॉर इंस्टेंस वन चीफ मिनिस्टर केम टू अस, हम आपको पब्लिकली कह देते हैं कि मुझको फलां चीफ मिनिस्टर ने नहीं हराया, मुझे तो हर इलेक्शन कमीशन ने हराया. सो बदनामी ले देते हैं मिस्टर मुलायम सिंह यादव. सो 3 महीने बाद 3 बाई इलेक्शन हुए. तो वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा आप माफ करना, एक तो मैं ऐसा बोलता था तो चलो बहुत पॉलिटिक्स में चलता है, लेकिन जितनी शक्ति आपने मुझे की थी अब ये कीजिए क्योंकि मैं अंडरडॉग हूँ. हम उसको कॉग्निजेंस लेते हैं. हमने इंस्ट्रक्शन की अपने अफसर को कि ये जो मांगे इनको दे दो. ये 4 आदमी के ट्रांसफर मांगेंगे, आप 8 के कर दो, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस हमें भी चाहिए, वापस चाहिए. ही इज नाउ द अंडरडॉग. अब ज्यादती हो रही होगी तो अब इनके साथ खड़ी होगी, हमने इनको प्रोटेक्शन देनी है. So whoever is the underdog has to be protected, and that's what election commission ensures. A party in power, incumbency advantage तो zero कर दिया जाता है. Even the timing of the election, इंग्लैंड में और दुनिया भर में पॉलिटिशियन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कब इलेक्शन लड़े जो उसको सूट करेगा. हमारे प्राइम मिनिस्टर विल बी द लास्ट टू नो इलेक्शन की क्या डेट है, क्योंकि वी डोंट वांट हिम टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज कि अपना ऐसा टाइमिंग चुन ले जिस पर वो सूट होगा. बिल्कुल नहीं चलेगा. Then ये सब करने के बाद पीपल पार्टिसिपेशन के हमारे इतने सारे एफर्ट, फिर भी एपैथी क्यों, पर्टिकुलरली अर्बन एपैथी. शहरी लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग वोट देने नहीं जाते, और वोट देने ही नहीं जाते बल्कि उसका फिर ब्रैग भी करते हैं, मैंने तो आज तक जिंदगी में वोट नहीं दिया. Now it becomes a fashion statement. This must change. Now instead of fashion statement, they should cover their face, they should hide their face. We want to convert this into a statement of shame and embarrassment. नहीं दिया तो वो जो बहाना करें, नगे ब्रैग करें. This is our effort. शहरों में 25-30% टर्नआउट होता है. बॉम्बे में हमने पिछले 5 साल पहले इलेक्शन में सचिन तेंदुलकर, आमिर खान ये सब यूज किए, उस सब के बावजूद 41% टर्नआउट.
फिर हम क्या देखा हमने कि वो फ्राइडे था, फिर पता लगा कि फ्राइडे था तो सब लोग सैटरडे संडे 3 दिन का मिला के वो क्या थी गाने में कि चल कहाँ आती है खंडाला बोलते छुट्टी के दिन बजाय पुणे के स्टेशन पर आके चलो खंडाला ना, वो ऑफिशियल हॉलीडे निकले है तो ताकि आप वोट देने जा सके उस हॉलीडे में आप घूमने निकल गए, नहीं चलेगा। तो फिर अच्छा हमारे एक और मुसीबत हो गई कि अब हमारे जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन में शेड्यूलिंग मैंने बताया पहली बड़ी मुश्किल होती है। बॉम्बे के लिए हमने कह दिया कि फ्राइडे मंडे को कभी नहीं रखना, क्योंकि फ्राइडे मंडे को ये लंबा कंडाला चले जाएंगे, तो वो और हमारी हेडेक हो गया। नाउ यूथ की एनरोलमेंट ये भी बड़ी लो थी। हमने देखा 18 we started analyzing the voter roll according to the movement, the gender. So we found the gender ratio of women was very little, so we have brought it almost as good as it should be. अभी भी gap है। यूथ में 18 से 19 वाले सिर्फ 12% एनरोल्ड हो रहे थे। फिर हमने जो स्टडी कहते थे हम, नॉलेज एटीट्यूड बिहेवियर एंड प्रैक्टिस सर्वे, हर 21 स्टेट में इलेक्शन जब से 2010 में हुआ हम सबसे पहले वो सर्वे कराते हैं कि लोग अगर वोट देने नहीं आते अपीति है तो क्या कारण क्या है, तो उसको समझ के ताकि हम उसको एड्रेस करें। तो हमने यूथ की जब स्टडी की तो बहुतों को यही मालूम नहीं कि मैं 18 का हो गया, मैं वोटर हो गया, हो सकता कौन सी तारीख को 18 एलिजिबिलिटी की डेट क्या है वो नहीं पता, 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर इज द एलिजिबिलिटी, बहुतों को नहीं पता। या अगर वो पता है तो उनको ये मालूम नहीं, करें तो क्या करें, कहाँ जाना है, व्हाट इज द प्रोसेस, हु टू कांटेक्ट, अगेन इंफॉर्मेशन। Thirdly, they have contempt for politicians कि सब नेता चोर है, सब नेता चोर है। Now ये सब नेता चोर है, again is a very dangerous state। हमने देखा है कि स्पीचेस में इसमें उनमें कहीं जहाँ नेता को गाली दी इतनी ताली बजती है, so बहुत खतरनाक। मैं उसको के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूँ, क्यों खतरनाक, because मेरा फेवरेट सेंटेंस जो है कि you can't love democracy and hate politicians। आप चाहते क्या है फिर, अगर आप पॉलिटिशियन से नफरत करते हैं और वोट देने जाने रहे तो आप क्या चाहते हैं, तो आप तो फिर डिक्टेटरशिप चाहते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए, सारे नेता तो चोर नहीं होते। इंडिया हैज बिकम ए मेजर पावर थैंक्स टू पॉलिटिकल लीडरशिप। पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारा रीजन एक साथ हुआ था, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, द डिफरेंस इज लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, उन सबको एक साथ पेंट करना। और अब पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए, पाकिस्तान में हमेशा आर्मी इसी नाम से आती है कि बड़ा करप्शन है, बड़ा है, नेता सब नेता चोर है, सब नेता चोर है, सब नेता चोर है कह के आर्मी को ले आते हैं। फिर वो बार बार वो हिस्ट्री रिपीट होती है। क्या हम वो चीज चाहते हैं? Certainly not. So therefore we have to make sure we participate and by turning out in large number. हमने जब ये सोशल मार्केटिंग टेक्निक यूज की, सारी पहले स्टडी की और फिर उसके बाद जो मोबिलाइजेशन की, उसका इतना फायदा हुआ कि 21 स्टेट में थे। अभी अगली स्लाइड में बताता हूँ रिजल्ट क्या हुआ। मॉडल कोड की पहले मैं जिक्र करूँ तो मॉडल कोड जो हम सख्ती से करते हैं, तो बहुत से नेताओं ने और या मीडिया ने कहना शुरू किया, इलेक्शन कमीशन ने तो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया। कितना जुलूस होता था, अब अगर वो 10,000 1,000 गाड़ियों का जुलूस फेस्टिवल था तो भाई वो तो हमने जरूर किल कर दिया। एक जर्नलिस्ट ने, बड़े फेमस टीवी और की जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हिंदुस्तान टाइम में, इलेक्शन कमीशन हैज किल्ड द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने उनके जवाब में एक आर्टिकल लिखा, मैंने कहा कि मैडम आप फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को जिसको मिस कर रही हैं, मैं आपके वापस दे देता हूँ आपको, आप मुझे घर का अपना एड्रेस भेज दीजिए, आपके घर वो फेस्टिवल आ जाएगा। और वो फेस्टिवल का क्या मतलब होगा कि आपकी दीवार के ऊपर सब स्लोगन पेंट हो जाएंगे, काले काले पोत दिया जाएगा, वोट फॉर सो पोस्टर खूब चिपका दिए जाएंगे, आपके घर के बाहर लाउड स्पीकर आपको 24 घंटे एंटरटेन करेगा, तो फिर आप यू एंजॉय योर फेस्टिवल। नाउ दैट फेस्टिवल वी हैव गिवन द फेस्टिवल। यूपी में एक जिले में बाराबंकी में 115 किलोमीटर की ह्यूमन चेन बनी। बुलंदशहर में औरतों ने, महिलाओं ने अपने पूरे स्टेडियम में रंगोली की, एक छोटे से घर की रंगोली की तरह मेहनत का काम होता है, हमारी बहनें जानती हैं, लेकिन पूरे स्टेडियम की में रंगोली, उस रंगोली में उन्होंने स्टेडियम को 13 सेक्टर में बांट के भारत की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें की। रियल पीपल्स फेस्टिवल, और फेस्टिवल का सबसे बड़ा सबूत टर्न आउट।
highest ever turnout in history in all these states. And women outvoted men in all these states. We brought you the festival. Tamil Nadu का मुझे याद है हिंदू अखबार में for 1 week letters to the editor 10-15 editors for 1 week continuously the letters were only to this effect कि thank you election commission कि आपने इतना peaceful election किया कोई no loudspeaker no nothing हमें पता ही नहीं लगता इलेक्शन हो रहा है now election क्या आपको पता लगना जरूरी है पता आपको है क्या वोट देने गए हैं आगे टर्नआउट देने का वो पता का क्या मतलब है कि किस चीज को आप कहेंगे जो पता लगा है कि इलेक्शन हुआ जब तक 2-4 आंखें न फूटे 2-4 टांगें न टूटे गोलियां न चले तो फिर मुझे याद है जब एक जमाना था ये फेस्टिवल था 1995-96 में मैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे ऑब्जर्वर लगाया बिहार में लालू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी और सेशन साहब सी थे प्रोबेबल सेशन था उन्होंने हमको अपनी जो ओरिएंटेशन के बाद इंटरेस्टिंग बात में कहा कि ठीक है नाउ बेस्ट ऑफ लक गो अहेड डोंट वरी थिंग्स आर ओके एवरीथिंग इज नॉर्मल एवरीथिंग इज फाइन you will be okay nothing will happen except a bullet through your stomach and a bomb on your face and sure enough I saw 2 bomb blasts ये जो यहाँ का आगे सामने जो दीवार दिखाई दे रही है इस फासले पे fortunately they were crude bomb now they were a regular modus operandi करते क्या थे कि ये पोलिंग बूथ पे गुंडे लोग जाएंगे बम ब्लास्ट कर दिया या पटाखा छोड़ दिया तो सब शरीफ आदमी तो भाग जाएंगे उसके बाद वो बूथ को कैप्चर करते थे और कैप्चर की तरह के उनके आपके बिहार पे जाके डब्बा में जल्दी जल्दी वो बैलेट ठूस देंगे ये क्या करते थे इन्हें अच्छा औरतों का जो कंट्रीब्यूशन होता था वो इसलिए भी कम होता था कि यू नो women are the first victim of any violence क्योंकि सबसे पहले वो चाहे vulnerable तो उनको सबसे ज्यादा चोट तो वो तो डर के आते थे the fact that they're coming in large numbers shows that how safe they feel now and this is one important contribution thanks to all our security forces the kind of ingenuity that they all use is the teamwork which goes is fantastic then हमने क्या किया कि 11 हर स्टेट से हम पहले नॉलेज एटीट्यूड बिहेवियर एंड प्रैक्टिस का सर्वे करते हैं कि क्या है दिस इज व्हाट सोशल मार्केटिंग टीचर्स अस इफ यू हैव अ प्रोडक्ट टूथपेस्ट आपने बेचना है तो आप पहले ऑडियंस का कंज्यूमर का सर्वे करते हैं कि ये अभी दांत अपने साफ रखते हैं तो किस चीज से रखते हैं नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते वगैरह वगैरह इन तक पहुंचने के क्या तरीके हो सकते हैं किसकी बात सुनते हैं कौन सा मीडिया तक पहुंचता है ये सब सर्वे करना हमने किया और उसके मुताबिक हम इन तक पहुंचे दूसरा होता था कि सिनिसिज्म अबाउट पॉलिटिशियन सब नेता चोर है इसको हमने एड्रेस किया कि सब नेता चोर नहीं है नेता हमारे बड़े शानदार नेता है देश के लिए अपनी जान लगा देते अपने और क्या कुछ उनके करके दिखाया वायलेंस का डर उसको हमने रिमूव किया फैसिलिटीज की कमी उसको फैसिलिटीज को बढ़ाया विद द रिजल्ट काफी इतना रिमार्केबल टर्नआउट जब ये वोटर टर्नआउट पुअर होता था तो 2 डिमांड हमें बार बार सुनने को मिलती थी कि भाई इतना पुअर है इसको कंपलसरी क्यों नहीं करते थे उसको हम इलेक्शन कमीशन और मैं पर्टिकुलरली हम उसको अपोज करते थे फॉर 2 रीजंस कि नंबर 1 कंपल्शन एंड डेमोक्रेसी डोंट गो टुगेदर राइट टू वोट इंक्लूड राइट नॉट टू वोट आपने वोट नहीं देना तो नहीं दीजिए कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं कह रहा सो एक तो ये दूसरा वो एक प्रैक्टिकल रीजन कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो कानून की उल्लंघना हो गई अगर कंपल्शन हो जाए तो उल्लंघना करेंगे तो सजा पाएंगे और वो सजा अगर एज लो एज 1 रुपी फाइन है पर लीगल सजा तो है लीगल प्रोसेस तो पूरा डिस्चार्ज करना पड़ेगा आपको नोटिस आएगा कोर्ट का नोटिस आएगा लीगल नोटिस आएगा क्यों आपके खिलाफ एक्शन नहीं दे फिर आप उसका जवाब दीजिए तो इन अदर वर्ड के हर वायलेटर के खिलाफ हम कोर्ट केस शुरू करेंगे पिछले जनरल इलेक्शन में 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया तो 30 करोड़ कोर्ट केस शुरू हो जाते हैं फिर आज तक 60 साल में 1 करोड़ 60 लाख पेंडेंसी है जिसपे सब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस रोज इस पे कंसर्न करते रहते हैं कि ये इतनी पेंडेंसी कैसे करेंगे हर इलेक्शन के बाद हम 30 करोड़ ऐड कर देंगे हो सकता है आप ये कहेंगे कि कंपलसरी हो जाएगा तो 30 करोड़ नहीं होगा 30 नहीं होगा तो 20 रह जाएगा 10 रह जाएगा 10 करोड़ भी हम ऐड कर देंगे फिर ये ऑस्ट्रेलिया में तो कंपलसरी मैंने ऑस्ट्रेलियन के अपने काउंटर पार्ट से पूछा कि आपके कंपलसरी उन्होंने कहा हाँ जी कंपलसरी है अब हमारे यहाँ फाइन है $50 उसको कलेक्ट करने के लिए हम $500 $5,000 खर्च करते हैं
और उसमें 5-5 साल लगते हैं। अच्छा, अब अगर ये हम कंपल्सरी करते हैं तो वो लॉयर्स तो बहुत खुश होंगे, लेकिन बाकी सब तो दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए उसका इलाज हमने कहा नहीं, वोटर एजुकेशन, डंडे से हम जो काम नहीं करा सकते वो प्यार से करा सकते हैं। हम प्यार से करा रहे हैं, वोटर एजुकेशन के जरिए किया। 70%, 80%, त्रिपुरा में 93%, कोई कंपल्सरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कंपल्सरी, हमारा 90% टर्नआउट है आफ्टर कंपल्शन। त्रिपुरा में आपको 93% प्यार से मिल गया। हर जगह 80 तो अब 9 होता जा रहा है, और आप देखेंगे 21 इलेक्शन हुआ उसके बाद से ये ट्रेंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। ये कोई फ्लूक नहीं था, ये कोई फ्रीक नहीं था, मुस्तकिल कंसिस्टेंट ट्रेंड चल रही है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी के एसेंशियल है। ये आजकल एक बड़ी डिबेट ओपिनियन एग्जिट पोल के चक्कर में खास वक्त आती है। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, व्हिच मींस जनता बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर सके बगैर डर के। दूसरा, वन साइडेड इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन एंड नॉन इंफॉर्मेशन all create an uninformed citizenry which make democracy a farce. Because the right of election is the key, very essence of the constitution. It needs little argument to hold that the heart of the parliamentary system is free and fair election. ये 77 की जजमेंट है। फ्री, अभी recent late most नोटा वाली जो जजमेंट थी उसमें free and fair election is the basic structure of the constitution. ये फ्री एंड फेयर भी कि हर जनता का हर वोटर बड़े आराम से उसमें आके वोट दे सके। फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमें जो रिफॉर्म मिल रहा है वो गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट दे रही है। एक 2003 में राइट टू इंफॉर्मेशन कि वोटर का ये जो यू हैव राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन कौन से कैंडिडेट के खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, कि कल तक पॉपर था, करोड़पति हो गया, कैसे बना, ये सब जनता को पता होना चाहिए। सो दैट व्हेन यू डिसाइड टू वोट यू हैव एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो एवरी कैंडिडेट हैज टू फाइल 2 एफिडेविट्स 2003 से कि जी मेरे खिलाफ ये केसेस पेंडिंग है और मेरे पास इतना पैसा है, आजकल इतनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब वो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल पे बड़ा होता था कि साहब हाउ कैन यू स्टॉप, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। लोग वो भूल जाते हैं कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन की उसी आर्टिकल 19 ने जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, उसी में लिखा है कि इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। और जो काफी लगी हुई, द फैक्ट कि 5 बजे इलेक्शन डे से 2 दिन पहले जो 5 बजे प्राइम मिनिस्टर भी स्पीच दे रहा हो तो 5 बजे उसका माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। Now somebody may say कि freedom of expression को अटैक कर दिया। No, that is a reasonable restriction in the interest of free and fair election. Now प्रेस काउंसिल ने 10 साल पहले ये जरूर पढ़िए, क्योंकि ओपिनियन एग्जिट पोल पे जो डिबेट थी उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। This has become necessary to emphasize today, since the print media is sought to be exploited by the interested individuals or groups to misguide and mislead the unwary voters by subtle and not so subtle propaganda on casteist, religious and ethnic basics, as well as by the use of sophisticated means like the alleged poll survey. Poll survey is a sophisticated means के जरिए लोगों को धोखा दे दो। अब होता क्या है, not that कि ये पहले पेड न्यूज होती थी, आपने शेयर खरीदने तो शेयर मार्केट ऐसा मैनिपुलेट करेगी कि एक आध शेयर किसी ने महंगा खरीद लिया कि जी शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो आप बेवकूफ बन गए, आपकी लाइफ की पूंजी उसमें लग जाती है। रियल एस्टेट वाले ये हम साल से यूज कर रहे हैं, क्या उनका प्लॉट बिक नहीं रहा तो उन्होंने एक झूठा एक सेल दिखाई, ये प्लॉट एकदम इतने महंगा बिक रहा तो जी प्राइस बढ़ गई, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इस किस्म की चीज इलेक्शन में भी चली। और ये पोल सर्वे, हम पेड न्यूज से जूझ रहे हैं, पैसे लेके न्यूज लिखते कितने केसेस हमने पकड़े, और उस केस में पैसा दो आपको पोल सर्वे, आप क्या रिजल्ट सुनना चाहते हैं सर, हवा बना देगा ना। हवा बनाने के लिए फिर हवा बनाने से क्या फर्क पड़ता है कि भाई आपने कि आप प्रभावित हो जाएंगे कि भाई फला जीत रहा है, चलो मैं उसके फेवर में वोट देता हूँ। ये अगर झूठी बनाई हुई हवा है, अगर सच्ची हवा है तो ठीक है, लेकिन किसी ने झूठी क्रिएट की है, एक वोट भी इधर से उधर हो गया तो ये इंटरफेरेंस है विद द पोल प्रोसेस। हमारे मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ भी जिक्र किया था,
एक मिनिस्टर है सेंटर में मिस्टर सीपी जोशी, ये राजस्थान से आप में कितने लोग हैं? आपको याद होगा कि ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, और ये था अगर वो जीत गए होते तो वो चीफ मिनिस्टर होते राजस्थान के, वो 1 वोट से हारे थे ना। अगर 1 वोट भी इधर का उधर सिर्फ बदमाशी से हो गया, झूठ बोलने से हो गया, तो ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से इंटरफेरेंस हो गई ना। दूसरी तरफ कि वो तो मैंने आपको बता दिया कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आप नहीं कर सकते, लेकिन वोट इज योर रियल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो बड़े ईमानदारी से ठीक माहौल में आपको करने के होने चाहिए। क्या कोई ये कह सकता है, आर्टिकल 19 पे तो खुद ही रिस्ट्रिक्शन है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। Will any one of you or anybody say कि no free and fair election you can do only up to 60%, उसके बाद बेईमानी होने दो, आपका काम तो सिर्फ 60% तक आपको fair रखना। Free fair election is non-negotiable. It has to be 100% free and fair. इस पे तो कोई restriction ही नहीं। So इसलिए anything which interferes with free and fair election has to be put down, and we feel opinion and exit poll because their authenticity doubtful. Technically, scientifically, if they're done honestly, no, by all means. I'm a PhD. I did my research. All research is good. We conduct our own research. Parties do their own research की तो हमारे क्या है, but they are for internal consumption. लोगों को धोखा देने के लिए नहीं होते। हमने लिए रिसर्च करें, लोगों के ओपिनियन जाने, उस बेसिस अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए, वो ठीक है, लेकिन नॉट टू मिसलीड। तो ये जो वोटर एजुकेशन डिवीजन वगैरह की मैंने बात की, हमने मीडिया को इन्वॉल्व किया, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, हमने इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस मीडिया को अवार्ड देने शुरू किए। कुछ चीज़ें मैंने किस तरह स्कूल के बच्चे हमने बच्चों को की पूरी फोर्स लगा दी कि अपने माँ बाप के सिपाही बन जाओ उनके ऊपर, कि जिस वक्त ड्राइंग रूम में नेता को कोस रहे होंगे, आप उनसे पूछना है आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था। अब बच्चे ही जब घर में सिपाही घुस जाए तो फिर कौन माँ बाप वो करेगा। तो उन्होंने उनको कंपेल किया, और बल्कि स्कूलों ने नई नई स्कीमें बनाई कि हर बच्चा इलेक्शन के अगले दिन सर्टिफिकेट ला के देगा कि हाँ मेरे घर में 4 वोटर थे, उन 4 में से 4 ने 3 ने इतने ने वोट दिया। तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व किया, कितने सिग्नेचर कैंपेन युवाओं ने कि हम जरूर भाग लेंगे और ईमानदारी से वोट देंगे वगैरह वगैरह। Now highest turnout in history, 22 स्टेट में इलेक्शन हो चुका है हमारे वोटर डिवीजन बनने के बाद, जिसमें से 12 हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। यूपी में 30% इंक्रीज जनरल एंड वुमेन का 45%। वुमेन आउटनंबर्ड मेन इन 17 आउट ऑफ 22 स्टेट्स। औरतों ने ज्यादा वोट दिया। यूथ का एंथुसियाज्म वगैरह। देन अब ये इसके बाद आप देखेंगे हमने क्या फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मारा है, या साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड दी है, या हमने रियल फेस्टिवल ऑफ द पीपल जनरेट किया है। Before now I'm through with my presentation, just 2-3 things to make you happy and proud. The last general election was the largest election in human history of the world. उसमें 740 मिलियन 71 करोड़ वोटर्स, 8.5 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन, 1.2 मिलियन वोटिंग मशीन वगैरह वगैरह। और हमारे वोटर कितने हैं? We have more voters than all 50 countries of Europe put together, all 54 countries of Africa put together, 44 countries of North and South America put together, the entire Commonwealth put together. We have more voters, and complexity of these 50, 60, 100 countries all rolled into one. कहीं terrorism है, कहीं caste, communal, tribal, ये सब violence, we have everything, but we deal with that. And every single voter we have to be bothered about. We have to be as Delhi, Connaught Place का election इतना अच्छा होना चाहिए जैसा है, वो remote island in Lakshadweep or in Andaman, which is closer to Indonesia than to Indian mainland, it has to be as good. There's no question about that. Then when we were celebrating our Diamond Jubilee, we just looked at our vision. कि ना our vision is कि क्या हमारी जो biggest democracy है, can it become the greatest democracy on earth? Yes, it can, if we are able to implement our vision. And what is our vision? That we are able to do the election that are free of crime and abuse of money, based on a perfect electoral roll and with full participation.
दो तीन न्यूज़पेपर के रिव्यू करें। अब ये न्यूयॉर्क टाइम के वी मिचेल 22 मई 2009, जरूर नेट पे अगर आप जाके देखें, एक पैराग्राफ में इसने हिंदुस्तान की 3000 साल की हिस्ट्री को सम अप किया है वेरी ब्यूटीफुली। I've just taken one line. It is truly the greatest show on earth, an ode to a diverse and democratic ethos, an inspiration to all the world. Then Indian Financial Times London, Indian voters show the way forward. Now these are the newspaper headlines which are very common. अब अच्छा इलेक्शन होना is no longer news. जिस दिन खराब होगा उस दिन न्यूज आएगी, हमें उसकी चिंता ज्यादा रहती है कि ये तो हमारे फर्ज बनता है, ये तो हमने करना ही करना है। Just a few pictures as a commercial break. Now, ये जो mode of transport, ये मजबूरी है कि although we have technology, we have helicopters also, but some places helicopter cannot reach, only a camel can. Somewhere only elephant, somewhere the mule, somewhere the boat. So these are different ways. We ensure that the poll happens very peacefully. Now, this picture of the Prime Minister and his wife, also very interesting. Prime Minister is showing his finger. You know, finger में हम क्यों मार्क लगाते हैं ताकि आप डुप्लीकेट वोटिंग ना कर दें, और जाके ना कर दें। Prime Minister is showing you कि लोग मैं किसी और जगह जाके वोट नहीं करूँगा, मैं यहाँ का वोटर हूँ। You know, even Prime Minister is not exempted. The equality. It's a very beautiful image, I would say. Now, these are some of the pictures. This is from अभी जो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ, वहाँ की एक SDM Priyanka Shukla. Anyone from Chhattisgarh? So I do want to mention that girl, Priyanka Shukla. She did such a beautiful voter education, और 80% तक उसने टर्नआउट दिया उस एरिया में जहाँ पे माओवादी ने धमकी दे दी थी कि जो आएगा उसकी उंगली काट देंगे, ऐसा काट देंगे। She was telling me कि 250 लोगों का आया कि हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, सरकार से दुखी। उसने कहा बैठो चाय पियो, मैं आपको तुमको फिल्म में एक दो दिखाई, और सबने वोट किया, वहां से 85% टर्नआउट दिया। ये बैठ के ये लोग बना रहे देंगे, रिश्वत लेके नहीं देंगे। You know, this is the most important thing. ये देखिए, these are some of our modern means of transport. This is, you know, how orderly जब मशीन जब वापस आ रही हैं तो ये हैंडओवर कर रहे हैं। I like this picture particularly. You know, the very happy girl and very happy eyes. Thank you, ladies and gentlemen.